So, hello everyone. I hope my voice is clear. Okay. So, I welcome you all for today's webinar, The Misunderstanding Trap and How to Prevent It. I introduce myself. I am Rashi Gandhi and I'm a counseling psychologist and I am a even certified parent coach. I have 10 years plus experience in this field and at Heels End, I'm heading the psychology department wherein we have lot of individualized personalized session for different mental and emotional health issues that clients come here for. And like people who have joined earlier, they must have seen that this is our second free webinar that we have formed for bringing awareness about psychological awareness among people. So today's topic is misunderstanding trap. Okay, so I would request all of you, those who can, please come on to the video and let the session be interactive. So if I'm asking some questions, you can either unmute and talk or you can write in the chat box. So I'll just wait for a few more seconds for others also to join in so that we can start. And in the meantime, I would like to tell you that there is one activity for which you'll need a paper. So just get a A4 size paper or just any size paper and a pencil. So we'll wait for 2 seconds. You get that. Till then, others will also join in. करूँ क्या स्टार्ट हुआ क्या किया क्या लोगों ने ज्वाइन करूँ वो अमृता कौन है अमृता और नीलेश को बोलना वीडियो ऑन करने को पर्सनली मैसेज डाल ठीक है ठीक है तो करना हाँ okay so let's begin. Okay, so I will be communicating and giving this presentation in Hindi as well as English. Okay, so misunderstanding a word is very common and we experience it in our day to day lives, right? Because it affects our relationships, it happens between friends, at workplace, between couples, even between parent and a child. Because whenever we are communicating with whoever we are communicating, misunderstandings can happen. So let's see क्या है ये misunderstanding. So I want you to all think that हम when we were growing up, we played one game, Chinese whisper या उसको broken telephone बोलते थे. क्या हमने खेला ये game? Yes? Yes? Okay. You can write in the comments yes or no so that I know. Because people who are not on the video, it's better if you can comment. Okay. So उसमें क्या होता था when we used to play Chinese whisper game? One person used to start saying something. Okay. वो दूसरे इंसान तक जाता है वो अपना इंटरप्रेट करके जब लास्ट इंसान तक वो मैसेज जाता है इट्स ऑल टुगेदर get all together a very different message, right? So how did this happen? If I am saying something, the cat is wet, but at the end उसका meaning and उसका interpretation completely different हो जाता था. This used to happen because मैंने जो बोला सामने वाले ने कुछ और समझा, उसने उसका मतलब कुछ और निकाला, उसने पास ऑन कुछ और किया, and by the end the sentence is completely different. And this is how misunderstandings happen, because when we say something, the other person interprets it differently. So, misunderstanding is nothing but the gap between what we think has happened and what actually happened.
मुझे जो लगा वो हुआ, बट एक्चुअली क्या हुआ, ये जो गैप है, दिस इज नथिंग बट मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, so we all must have experienced that sometimes a smallest thing of someone's text, किसी का कुछ मैसेज या किसी का लेट रिप्लाई, ओके, या किसी का टोन हमारा पूरा मूड खराब करता है. हैज इट हैपेंड? Right? It has happened. A smallest action, a text, a late reply has changed our mood. Okay. This happens why? Because when the tone and the text we interpret from our mood state, from our experience, and that creates our change of mood. We think कि अरे उसने ओके क्यों लिखा, उसका मतलब तुमने इंटरप्रेट किया कि मे बी यू नो ही इज एंग्री विथ मी और शी इज एंग्री विथ मी. और समवन who daily says, you know, daily is at workplace, daily a person is, you know, behaving in a certain way, but today that person is behaving differently. Immediately you will have a thought, you know, okay, did I do something wrong? Right? So this is what creates misunderstanding, because you interpret it without communicating anything. Okay, so this is how you welcome to the world of misunderstanding which happen every day, right? So let's see how we understand this in detail. So for that, let's move on to a simple activity which will take you to a deeper understanding of misunderstanding. Okay, so I want all of you to close your eyes and think of the last time you had a misunderstanding with someone. Remember, who was it with? Even check, how did you feel? आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा आया, आपको सैड फील हुआ, आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ, आपको क्या फील हुआ जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? एंड नाउ गो टू द एंड व्हेन द मिसअंडरस्टैंडिंग वाज क्लियर. जब आपको दूसरे इंसान का व्यू पॉइंट समझा, ठीक है, तब तब जब आपको समझा और जो आपने अज्यूम किया था वो मैच होता है क्या? जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो आपने अज्यूम किया, ठीक है, व्हाट यू फेल्ट, एंड जब एक्चुअली वो क्लियर हुआ, उसमें मैच हुआ था क्या तुम्हारा अजम्पशन एंड जो रियलिटी हुआ था? यस और नो? ओके, नो. So most of you are nodding no. So most of the times what you have assumed, and when the misunderstanding clears, you understand that it does not match, right? And most of the time you realize that when you are feeling misunderstood or there's a misunderstanding, you go through a turmoil of emotions. So just see on the screen, these are the different types of emotion that you may feel. Irritation हो सकता है, you may feel guilty because sometimes you think that, you know, मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, उसको बुरा तो नहीं लगा, so you feel guilty. You feel hurt sometimes, you feel confusion that why did this happen. There is emotional distress, there's a lot of distress that happens. Frustration is there, you feel embarrassed, and there's a conflict, right? So these are the turmoil of emotions that you go through when misunderstandings happen. जब तक वो क्लियर नहीं होती है तब तक you are either in one of these emotional state, right? So this is what happens. So I want you that next time whenever this misunderstanding happens and you are in this emotional state, just check in and remember this example, which is called as the foggy window trap. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ग्लास विंडो से किसी को देखना है, बट दैट ग्लास विंडो इज फॉगी, इट्स नॉट क्लीन, इट्स फॉगी, ठीक है, एंड यू आर सीइंग, आपको दिख रहा है क्लियरली नहीं, आपको कुछ गेस करते आ रहा है कि हाँ आई थिंक ये इंसान है, आप गेस भी कर सक रहे हो कि शायद वो क्या कर रहा है, राइट, बट द डिटेल्स आर नॉट क्लियर बिकॉज द ग्लास विंडो इज फॉगी, राइट?
बट योर माइंड क्रिएट्स द फुल पिक्चर. हमारे पास फुल पिक्चर है क्या? नहीं. वी डोंट सी द फुल पिक्चर, बट आवर माइंड वांट्स टू मेक इट कंप्लीट. तो वो क्या करता है? हमको फॉगी विंडो में से हम अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये इंसान है, अच्छा वो ये कर रहा है. आवर माइंड हैज फिल्ड इन द गैप्स and we start believing it to be true. We don't check. So this happens in misunderstanding. We are wearing glasses which are foggy. Details clear नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट हमने अज्यूम कर लिया है और हमने उसको बिलीव कर लिया है एंड हम उसको रियलिटी मानते हैं. So this is what happens in misunderstanding. बट एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग डिटेल में क्या होती है, क्या उसके रीजंस होते हैं, क्या अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, ये हम डिटेल में समझेंगे आदित्य से. सो आदित्य, आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू. सो प्लीज एक्सप्लेन व्हाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन इन डिटेल. Okay. So am I audible? या. आवाज आ रही है मेरी properly? Yeah. यस. So good morning, everyone. So this is Aditya. First, I'll introduce myself. My name is Aditya. I'm a clinical psychologist at Hilsin. Working, I have experience in 7 years. So जैसे राशि मैम ने rightly बोला अभी, बाकी जो छोटे छोटे चीजें हैं वो एक्सप्लेन की है उन्होंने, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस बताए. लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा होता क्यों है, ये जो इमोशनल साइकिल है, ये इमोशंस का जो साइकिल चलता है वो एग्जैक्टली exactly है क्या. So let's focus on why misunderstanding basically happens at the first time. जब हम किसी से कुछ बात करने जाते हैं या फिर हमारा कुछ डिस्कशन होता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे लगा, मैंने सोचा, शायद ऐसे हो सकता है. बहुत बार ये कॉमन है, हमारे साथ होता है जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है या फिर कुछ भी इंटरेक्शन होता है, उस टाइम में हम इस तरह से एजम्पशंस लगते हैं. तो सबसे पहला वाला पॉइंटर जो होता है दैट इज एजम्पशन, विच इज कॉल्ड एज मुझे लगा, मैंने सोचा, शायद ऐसे होने वाला है, इसकी वजह से मैंने कुछ तो एक्ट आउट किया. सो दैट इज द मेन फैक्टर जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं. जब मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि सामने वाले को एग्जैक्टली बोलना क्या है, मुझे क्या लगा, क्या वो सच है, और ये सब हो क्यों रहा है. सो पहला पॉइंट जो है, एजम्पशंस के साथ साथ हमारे कुछ इमोशनल फिल्टर्स है. इमोशनल फिल्टर्स मतलब क्या? इट्स काइंड ऑफ अ ग्लास. जैसे हम सनग्लासेस पहनते हैं, हम जब बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, काले सनग्लासेस पहने हमें सब डार्क दिखेगा, हमें लगेगा कि सब काला काला है. रेड ग्लासेस पहनेंगे तो इवन स्नो भी रहेगा तो भी मुझे रेड दिखने लगेगा. तो ये इमोशनल फिल्टर्स है. वो इमोशनल फिल्टर्स हम मन को एक ग्लास पहन के चलते हैं. सो जब मन को हम ग्लास पहनते हैं तो उस ग्लास में से जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से हम एज्यूम कर लेते हैं चीज. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द इमोशनल फिल्टर्स. इमोशनल फिल्टर्स मतलब होते क्या है. ये बेसिकली ना हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस या फिर ट्रॉमा की वजह से जो हमने सीखा हुआ है बचपन से अब तक, उसकी वजह से ग्लासेस बने रहते हैं. कभी शायद मुझे बहुत बार ट्रोल किया गया था, कभी अगर मैं कुछ बोलने गया मुझे जज किया गया था, तो फिर उसकी मेमोरी कहीं ना कहीं मेरे मन में है. तो इसकी वजह से ये ग्लास मैंने पहन के रखा है. तो एग्जैक्टली होते क्या है ये इमोशनल ग्लासेस. विल स्टार्ट विथ फियर, सबसे कॉमन ग्लास. अभी हम एग्जांपल ले ले, अगर हम किसी जॉब पे है और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं क्लाइंट को पकड़ के रखने की, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने की, लेकिन इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद क्लाइंट अचानक से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है. और फिर मुझे लगने लगता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्या मेरी गलती की वजह से अपॉइंटमेंट गई है. तो आई अज्यूम कि मैंने ये गलत किया, तो मेरे आंखों पे ये फियर का ग्लास आ गया. तो इसके आगे जो भी इंटरेक्शन होगा, जब भी कोई कुछ पूछने जाएगा तो फिर मैं वो फियर के ग्लास से ही देखूंगा. आई विल नॉट कंफर्म कि क्या ये सच है. तो ये सबसे पहला वाला ग्लास है जिसमें हम बोल सकते हैं कि फियर का ग्लास, जिसमें आप सिचुएशन को एक रिस्क या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर वो डरावनी सिचुएशन है, इस तरह से हम इंटरप्रेट कर लेते हैं. एंड उसी तरह से हमारा इंटरेक्शन होता है. ऐसा कभी हुआ होगा तो आप आपके कुछ भी इंसिडेंसेस है मिसअंडरस्टैंडिंग के, उसको आप एक विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर इमेजिन कर सकते हैं. एंड जब हम इमोशनल फिल्टर्स जैसे जैसे समझेंगे आगे जाके, जस्ट फिगर आउट कि हमारा कहाँ पे ये एक इमोशनल फिल्टर बैठ रहा है. ओके. ओके, सो नेक्स्ट मूव मूव टू द नेक्स्ट इमोशनल फिल्टर. दूसरा होता है गिल्ट, जिसमें बहुत बार ये कॉमन फ्रेंड्स में होता है. जैसे हमने बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलने का डिसीजन लिया, हमने प्लान बना लिया, हम फ्रेंड्स के साथ मिले, एंड मिलने के बाद फ्रेंड बहुत साइलेंट है.
अभी पहले कुछ तो इंटरेक्शन हुआ रहेगा, पहले कुछ अगर मैंने किया रहेगा, ऐसे कोई इंसिडेंसेस हुए रहेंगे इससे पहले, तो वो एक ग्लास मेरे मन में। तो फिर मुझे लगने लगता है यार मैंने इसको हर्ट किया, इसकी वजह से ये मुझसे बात नहीं कर रहा। तो आई ट्राई टू प्लीज़, आई ट्राई टू इंटरैक्ट अकॉर्डिंगली, ये मेरे चलते रहेगा। लेकिन मेरे मन में ये फिक्स हो गया है कि फ्रेंड साइलेंस इसलिए है, क्योंकि मैंने ही कुछ उसके साथ गलत कर लिया। फिर मैं उसको टोक के पूछने की, बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो गया। लेकिन मैंने कभी स्ट्रेट जाके पूछा नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत साइलेंट हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये इंटरैक्शन नहीं जा रही है। तो फिर वहाँ पे क्रिएट होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फिर तुम्हें लगने लगता है कि फ्रेंड तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, या फिर फ्रेंड हर्ट है मेरी वजह से, और फ्रेंड को लगता है इसको तो फिर उसी की पड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तीसरा फिल्टर होता है रिजेक्शन। जैसे बहुत बार ऐसे होता है, गर्लफ्रेंड रहेंगे या फिर किसी फ्रेंड को, जो बेस्ट फ्रेंड है जिसको हमने रिप्लाई किया है, मैसेज करके रखा है, मॉर्निंग में मैंने मैसेज ड्रॉप तो कर लिया, लेकिन उसका अब तक रिप्लाई नहीं आया, एंड आई एम नॉट गेटिंग कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। फिर मुझे लगता है कि शायद इसका ना मेरी गर्लफ्रेंड का मुझ में से इंटरेस्ट ही चले गया। ये बहुत कॉमनली रिलेशनशिप्स में होता होगा। तो फिर बहुत बार हम ब्लेम करने लगते हैं डायरेक्टली कि हाँ, अभी तो क्यों करेगा ना मैसेज? क्या ज़रूरत है ना तुझे मेरी? मैंने ये पूछा नहीं कि क्या वो बिज़ी था, क्या दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या है? क्योंकि मेरे मन पे जो है वो एक रिजेक्शन का फ़िल्टर बना हुआ है। तो फिर जब मैं ये क्रॉस चेक करने जाता हूँ, तो फिर हमेशा उस ग्लास के हिसाब से ही मैं क्रॉस कर चेक करने जाता हूँ, जिसकी वज़ह से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, रादर देन सॉल्विंग द सिचुएशन। राइट? उसके बाद आता है एंगर। बहुत बार ऐसे होता है, ये बहुत कॉमनली हमारे ऑफिस सेटअप्स में होते हुए दिखेगा। ऑफिस सेटअप्स में जब भी हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत बार आगे से हमें कुछ फीडबैक दिया जाता है। तो फिर मुझे ऐसे लगने लगता है कि यार ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो फिर रादर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम, रादर देन अंडरस्टैंडिंग दैट फीडबैक, आई ट्राई टू डिफेंड माई सेल्फ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैंने क्या ये किया है, मैंने कैसे सही किया, मैंने क्या नहीं किया है। बट वहाँ पे वो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो क्लेरिफिकेशन दोनों में हुआ ही नहीं। तो ये सारे जो फ़िल्टर्स हैं, ये सारे जो गॉगल्स हमने जो पहने, इसकी वज़ह से शायद हमारा जो है, वो असम्पशन लग जाता है। उसके बाद आता है बहुत बार सेल्फ वर्थ। हमारे साथ ऐसे बहुत बार होता होगा कि कोई हमें बोलता है कि बहुत अच्छे दिख रहे हो, या फिर ये ना तुमने बहुत अच्छे से बना है, और बहुत कॉमन सा रिप्लाई हमसे जाता है कि हाँ, तुम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, मुझे मतलब तुम्हें मना नहीं इसलिए बोल रहे हो ना? हाँ, मुझे पानी लगा रहा है ना तू? मस्का मार रहा है ना? सो दीज़ आर द फिल्टर्स जिसमें सेल्फ वर्थ होता है, बराबर है? तो ये सारे जो फिल्टर्स है, कहीं न कहीं वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट हमारे लाइफ के साथ बहुत बार, कि ऐसे होता क्यों? व्हाई इट इज़ हैपनिंग, बराबर है? तो बहुत बार ये जो सेल्फ वर्थ या फिर बाकी की जो जितने भी हमने डिस्कस किए अभी, तो ये डिस्कस की हुई चीज़ें हैं, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम में मेरा मूड किस तरह का है। शायद मेरा झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं ऑलरेडी एंग्री हूँ, तो मैं सारी सिचुएशंस को उसी इमोशन के साथ पर्सीव करने लगता हूँ। क्या ऐसे हुआ है किसी के साथ? इफ यस, आप ना मैसेज कर सकते हैं कि यस ऐसे हुआ है। एंड सबसे पहली बात, आपने अगर मैसेज किया है तो नो वन इज गोइंग टू जज, बिकॉज़ वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द न्यू टेक्निक। ओके? तो आपको अगर लगता है तो आप फ्रीली जज करो कि हाँ, ऐसे हुआ है मेरे साथ। कॉम्प्लीमेंट किसी ने तो भी मुझे किया, और मैंने बोला कि आपने मन रखने के लिए बोला है क्या? एनीवन? किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? एक बार सोच लो, 2 मिनट आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस सोच लो, एंड जस्ट कमेंट सो दैट वी कैन कंटिन्यू द कन्वर्सेशन अच्छे से। यस, इट हैज़ हैपेंड, ग्रेट। और कोई है जिसको लगता है? नीलेश, यस। थैंक यू नीलेश फॉर रिप्लाई। यस, और कौन? और किसी को? सोचिए आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन, थोड़ा काम पे लगाते हैं दिमाग को। ओके, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं रहेंगे, जो भी है वो आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन जस्ट फिगर आउट, दीज़ आर द फिल्टर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक बार अगर ये हम समझ गए, उसके बाद हमारे कम्युनिकेशन में चेंजेस बहुत अच्छे से दिख सकते हैं, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। बहुत बार होप होता है, जैसे किसी ने छोटा-सा हमारे लिए एफर्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई है, और मेरे बॉयफ्रेंड ने या फिर गर्लफ्रेंड ने मुझे एक रोज़ दे दिया। तो फिर मुझे ऐसे लगने लगता है, बाप रे! कितना मतलब कितना प्यार करता है ये मुझसे। तो चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करना,
मतलब एफर्ट बहुत ही मिनिमल है, लेकिन हम देखते हैं इस तरह से, लेकिन बहुत बड़ी चीज हो गई इसकी वजह से। फिर अगली बार जब हम वही एक्सपेक्ट करते हैं, अगली बार वैसा नहीं हुआ, देन वी फील डिसअपॉइंटेड। तो ये सारे सिचुएशन जो होते हैं, ये हमारे मन पे लगे हुए गॉगल्स की वजह से हो रहे हैं। तो अगर एक बार हम लोग ये अगर गॉगल्स निकाल सके, तो फिर हम एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कि हो क्या रहा है, राइट? सो जब हम होप का फिल्टर मन पे लगाते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारे से होती है, दैट इज वी टेन टू इग्नोर रेड फ्लैग्स ऑफ रिलेशनशिप्स। और जब वो रेड फ्लैग्स हमारे निकल जाते हैं या फिर हम नहीं देख पाते हैं, तो फिर हम उस रिलेशनशिप को उसी तरह से कंटिन्यू करने लगते हैं। एंड अगर हम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये सारे मिसकम्युनिकेशंस बढ़ते जाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कन्वे इट, राइट? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दीज फैक्टर्स, कैसे वो मेंटल फिल्टर्स को हैंडल करना है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट, टोन एंड इंटेंट। जब भी हम कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है, हाँ फाइन, मतलब क्या? तो बहुत बार किसी ने अगर आंसर किया मुझे, हाँ ठीक है, अगर उस टाइम में मैं हैप्पी मूड में हूँ, तो मुझे लगेगा हाँ यार ठीक है, मतलब वो बिजी रहेगा इसलिए बोला। उस दिन अगर मैं एग्रेसिव रहूंगा, हाँ इतनी हिम्मत है इसकी, मुझे फाइन बोल के गया वो, इस तरह से मैं इंटरप्रेट करूंगा। अगर मैं गिल्टी रहूंगा, यार इसने ऐसे क्यों बोला, इज एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ इसको हर्ट किया है क्या? सिचुएशन सिर्फ इतनी ही हुई है कि उसने बोला है फाइन, बट हमारे जो मेंटल फिल्टर्स है, उसकी वजह से वो टोन एंड इंटेंट को जो है वो मिसमैच हम फिगर आउट नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी टेन टू ओवर थिंक। बहुत बार हमसे भी ऐसे होता है। बहुत बार हमें जो बोलना होता है, अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बार हम लोग टूट के आंसर देते हैं, हाँ देख लेंगे। तो नो वन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट देख लेंगे। देख लेंगे का मतलब ये है क्या, कि हाँ पापा प्लान करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो जो हमारा इंटेंट है, वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट? उसके बाद आगे बढ़ते, अभी अगर हम अंडरस्टैंड कर सके, जिस तरह की इमोशनल फिल्टर सबके अलग अलग रहेंगे। अभी अगर गिल्ट वाला एंड रिजेक्शन वाला एक दूसरे के सामने है, एंड उन दोनों में कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि व्हाट विल हैपन। तो फिर वहां पे जो उनको क्लियर करना है, वो तो वो बोल नहीं पाएंगे। रिजेक्टेड पर्सन को लगेगा यार, इसके लिए इसको ना मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, और गिल्ट वाले को लगेगा यार ये मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ किया है क्या मैंने इससे? इसलिए कुछ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इनिशिएट ही नहीं हो पा रहा है। So that is the awkward gap, communication gap, which we need to understand. So जब भी हम लोग टोन एंड इंटेंट के बारे में बोलते हैं, जो मुझे बोलना है उसी तरह का मेरा अगर टोन जाता है, तो फिर मेरा कम्युनिकेशन राइटली डिलीवर होता है। और अगर टोन मिसमैच हो गया है या फिर मेरे को इंटेंट क्लियर नहीं है, तो फिर बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके बाद बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, विच वी नीड टू रिस्पेक्ट। तो बहुत बार ऐसे रहता है कि पैसिव हेजिटेंट रहते हैं, आधी आधी बातें बोलना, क्योंकि मन में एक डर है या फिर कहीं न कहीं जजमेंट का फ़ियर है, तो फिर वो डायरेक्टली कन्वे नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे बात आधी-आधी इन्फॉर्मेशन बताना। हाँ, उन्होंने वो बोला था। हाँ, मतलब वही करने के लिए बोला है यार। तो ये इन्फॉर्मेशन से ना मुझे इंटेंट समझ में आ रहा, ना एग्ज़ैक्टली करना क्या है वो समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने जो बीच में गैप भरे हैं, मेरे मन के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं कर लूँगा। फिर उसपे क्रिटिसिज़्म आने लगता है। तो फिर इसके लिए अगर इस तरह का कम्युनिकेशन स्टाइल किसी का है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि हाउ टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। मुझे एग्जैक्टली पूछना क्या होगा, या फिर मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, क्या मैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली कन्वे कर सकता हूँ? तो फिर कम्युनिकेशन स्टाइल का सबसे पहला कम्युनिकेशन स्टाइल है, दैट इज पैसिव एंड हेजिटेंट। रुक रुक के बात करना, क्लियरली कुछ बातें नहीं बोलना। उसके बाद अगली बार आता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, जिसमें बहुत बार हम लोग अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे गुस्से में बोलते हैं। अगर आपका बॉस गुस्से में रहेगा, तो फिर वो किस तरह से, क्या आपको वो प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है? जस्ट टेल मी, यस और नो। आप सब लोग वर्किंग रहेंगे, आपके घर में कोई ना कोई रहेगा। तो जब भी कोई बॉस चिढ़ा हुआ है या फिर मैनेजर चिढ़ा हुआ है, क्या वो आपको राइट वे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है? क्या आप प्रॉपर्ली समझ सकते हैं? जस्ट टेल मी, यस और नो। थिंक अबाउट द सिचुएशन। नो, ओके। So जब बॉस हमें इन्फॉर्मेशन, ओके, कन्वे, सो विषय सेइंग नो, ओके।
तो जब बॉस हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है तो वो आपको प्रॉपरली बताता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरह से करना है, और वो इतने एग्रेसिव वे में बात कर रहा है कि हम लोग पूछ भी नहीं सकते कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। तो फिर वहां पे हमारा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह से जा रहा है एंड बॉस किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारे फिल्टर्स आने लगते हैं एंड व्हेन इट हैपेंस, तो इसकी वजह से बहुत बार हमारा मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है। उसके बाद होता है कि पैसिव एग्रेसिव, जैसे हमारे हमें गुस्सा तो आया है, हमें क्लियर करनी है कोई चीजें, लेकिन हम क्लियरली बता नहीं पाते। हम लोग बहुत बार क्या कर लेते हैं, टॉन्ट कर लेते हैं या फिर सार्केज्म डाल देंगे, हाँ वो तो वैसे ही करेंगे उन्हें, अभी तो आप वैसे ही करेंगे ना। व्हाट एक्चुअली आई वांट टू कन्वे, क्या आई वांट दिस, लेकिन मैं कन्वे क्या करूंगा कि हाँ आप तो अभी वैसे ही करेंगे ना। तो फिर वो एक पैसिव एग्रेसिव टोन में चले जाएगा। फिर आपके नीड्स जो है, जो आपको बोलना है, आपके जो नीड्स है, वो कन्वे तो नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके नीड्स ही कन्वे नहीं होंगे तो फिर आप एग्जैक्टली कम्युनिकेट करेंगे कैसे? तो इसलिए सबसे बेस्ट वे जो होता है इस कम्युनिकेशन में, वो होता है असर्टिव वे टू कम्युनिकेट, जिसमें हमें क्लैरिटी रहे कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर मुझे पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो फिर उस टाइम में मैं उनको बता पाऊंगा कि आई वॉन्ट दिस टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बोलना है और उसकी डेडलाइन बतानी है, और वो हरीड है डेडलाइन, जैसे कि 8 दिन लगने वाले उस प्रोजेक्ट को, लेकिन मुझे मेरा बॉस बता रहा है कि 4 ही दिन में करना है। तो फिर मुझे वो समझना चाहिए कि 8 दिन में वो पॉसिबल होने वाला है, 4 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। व्हाट आई कैन कन्वे इज कि सर आई अंडरस्टैंड कि व्हाट योर शेड्यूल इज एंड हाउ इट इज, बट ये 4 दिन में होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए इतने इतने दिन लगने वाले हैं। जिसमें ना हमने कोई डिसरिस्पेक्ट किया है किसी का, ना हमने किसी को कुछ उल्टा बोला है, ना फिर कुछ जो हमारा नीड है वो तो कन्वे किया विदाउट इंसल्ट करे, ना टोन बदला है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज शुड बी कॉन्फिडेंट एंड हमें पता होना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है, क्या मैं बताना चाहता हूँ। दैट इज अ वे, असर्टिव वे, जिसमें शायद सामने वाले को बुरा लगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि बुरा नहीं लगेगा, शायद बुरा लगे, लेकिन जो मेरे नीड्स है एटलीस्ट एक साइड से तो भी कन्वे हो जाएंगे। ये अगर वे हम लोग अप्लाई करेंगे तो दैट कुड बी अ बेटर वे टू कम्युनिकेट। उसके बाद ये डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस वे से हम लोग बता सकते हैं, राइट। उसके बाद लिसनिंग टू रिप्लाई वर्सेस लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। बहुत बार हम ना मन में एक आंसर क्रिएट करने के पीछे लगते हैं। तो फिर जब हम लोग लिसनिंग टू रिप्लाई के मोड में रहते हैं तो हमारा गोल क्या होता है उस टाइम में, कि मुझे प्रूफ करना है सामने वाले को, मुझे बताना है कि ऐसा नहीं है। वो कुछ भी पूछेगा मैं बीच में काट के आंसर देने के लिए जाऊंगा। सो मेरा गोल उस टाइम में ये नहीं है कि मुझे समझना है एंड उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें करनी है। माई वे विल बी मुझे डिफेंड करना है, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस जो रहता है वो मेरे थॉट्स पे रहेगा। मतलब सामने वाला जो भी बात कर रहा है, आई एम नॉट लिसनिंग टू दैट पर्सन, आई एम इनटू माय थॉट्स ओनली। और उसकी वजह से सामने वाला जो कन्वे कर रहा है वो ना सुनने की वजह से कभी कभी वो मिसमैच चले जाता है। फिर सामने वाले को लगता है कि आपको समझा नहीं, आपको लगता है कि सामने वाला आपको टारगेट ही कर रहा है, तो फिर ये कम्युनिकेशन स्टाइल जब क्रॉस होने लगते हैं तो फिर दिस इज कॉल्ड एज लिसनिंग टू रिप्लाई, जिसमें हम डायरेक्ट एडवाइस पे जाएंगे या फिर बीच बीच में काट के बोलेंगे। तो ये स्टाइल अगर रहेगी तो दिस कुड क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। बेस्ट वे क्या हो सकता है, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, पहले समझ के ले कि एग्जैक्टली सामने वाले को बोलना क्या है, शायद उसको ब्लेम भी नहीं करना, उसको उसकी सिचुएशंस बताने हैं, लेकिन उस टाइम में एग्जैक्टली मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या इस फिल्टर को मैंने किसी फिल्टर को अप्लाई करके सुन रहा हूँ, ये सारी बातें जब मैं समझ सकता हूँ उसके बाद ही मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो लिसनिंग टू अंडरस्टैंड में फोकस क्या रहेगा, मेरा फोकस ये रहेगा कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली बोलना चाहता क्या है, व्हाट यू वांट टू एग्जैक्टली कन्वे टू मी, दैट वुड बी द फोकस, राइट। एंड उस टाइम में मेरी थॉट पे मेरा फोकस नहीं रहेगा, मेरा फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी बात क्या चल रही है उस पर रहेगा। So this would be a better way of communication so that you can understand what exactly is the point of the communication. एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो यू कैन प्रिपेयर अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट, राइट। सो दिस कुड बी अ बेटर वे टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। ये हो गए मिसअंडरस्टैंडिंग के कुछ चीजें।
कभी कभी पास्ट ट्रिगर्स होते हैं, कुछ कुछ पिछले टाइम में मुझे कुछ सिमिलर एक्सपीरियंसेस आए हैं, तो जिसकी वजह से अगर सिचुएशन उस तरह से होने लगी तो मैं एक्ट आउट करने लगता हूँ। जैसे मैनेजर आया, एक्सक्यूज मी आई वांट टू टॉक टू यू, तो फिर मेरे अंदर वो पहला वाला ट्रिगर है कि उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, तो मेरा पहले से ही ग्लास क्रिटिसिज्म का ऊपर आएगा, शायद वो कुछ अलग बात भी बोलना चाहता है, लेकिन वो ग्लास की वजह से आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे मी। एंड जब भी वो आंसर करने लगेगा, आई डायरेक्टली, अगर मैं असर्टिवली बोलूंगा या फिर मैं पैसिव एग्रेसिव मुंह ही बंद करके बैठूंगा, साइलेंट ट्रीटमेंट की तरह रिएक्ट करूंगा, तो अगर ये तरह से करूंगा तो ये पास्ट ट्रिगर की वजह से मेरा जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस ट्रिगर्स। कभी कभी नॉन वर्बल मिसमैचेस भी हो जाते हैं, जैसे मैं बोल एक रहा हूँ, हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पूरी दिख रही है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो शायद से हमें ना नोटिस में नहीं आती, लेकिन जिसकी वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाता है, एंड लोगों को वो कुछ अलग तरह से जाता है। तो फिर व्हाट वी कैन डू, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सो आई जस्ट हैंड ओवर इट टू राशि, शी विल टेक द एक्टिविटी जिसमें हम आगे का समझेंगे। थैंक यू। थैंक यू आदित्य। सो वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, जैसे आदित्य ने एक्सप्लेन किया। सो लेट्स जस्ट डू अ प्रैक्टिकली दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे बहुत सिंपल चीज से हो सकती है कम्युनिकेशन में। सो उसके लिए आई वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट टेक अ पेपर, A4 size or any that whatever you have around you. Okay. Yes. So I'll just give you a minute. Please, everyone, get a paper and a pencil. Has everyone got it? Just give me a thumbs up in the chat box so that I understand and I'll start the activity there. Paper and a pencil. That's all. You have to get it. Okay. Okay. So shall I start? I'll just start by giving the instructions. Okay. So in this activity, you have to follow my verbal instructions. Okay. There are no questions that you can ask in this, but you just have to follow the verbal instructions that I'm giving. Okay. So, shall I start then? Okay, everyone's here? Okay. So, you have the paper in front of you, take the pencil and just start with the instructions that I'm giving. Okay. You have to follow my instructions. Draw one big circle in the center. Add two small triangles on top of the circle. Next, draw two small circles inside the big circle for eyes. Okay. Next, add three whiskers on each side. Add three whiskers on each side. Done? Okay. Now, I want all of you to show the picture on the camera. Can everyone show?
Okay. Tina, if you can. And just keep it on the camera and just see everyone's drawing. ठीक है? मैंने सबको सेम इंस्ट्रक्शंस दिए थे, राइट? बट क्या किसी का भी सेम आया है? राइट। मुझे बताओ, सबकी ड्राइंग्स में किसी का भी सेम आया है? नहीं। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जब मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, अब मैंने बोला ड्रॉ अ बिग सर्कल, ठीक है? अब बिग, आपकी समझ क्या है बिग की, राइट? उस हिसाब से आप निकालोगे। अब मैंने बोला डॉट ड्रॉ टू स्मॉल ट्राइंगल्स, स्मॉल का भी इंटरप्रिटेशन आप आपके हिसाब से करोगे, राइट? एंड कहीं ना कहीं बनाते बनाते आपको लगा कि अच्छा ये है ना, कहीं कोई एनिमल बन रहा है, राइट? तो वो एनिमल का भी जो परसेप्शन है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपके दिमाग में जो इमेज आया, आपने उस हिसाब से वो इंटरप्रेट किया आपके ड्राइंग पे, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस। भले मैंने कम्युनिकेट सबको सेम किया है, बट सबका अंडरस्टैंडिंग, सबका इंटरप्रिटेशन, सबने जो मीनिंग लगाया है वो अलग अलग हुआ है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी से कि जो सामने वाले ने बोला, बट सामने वाले को, हर एक इंसान को उसका अलग अलग मीनिंग समझता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन कम्युनिकेशन, बिकॉज आई टोल्ड यू कैन नॉट आस्क मी क्वेश्चंस, एंड बिकॉज यू डिडंट आस्क मी क्वेश्चंस, आपको डाउट रहेगा, और आपने डाउट को क्या किया, आपके माइंड एंड अपने अंडरस्टैंडिंग से फिल इन किया, कवर किया उसको। And this is what happens in miscommunication. When we don't clear the doubts, we assume things. We assume and we interpret and we present it that way. So this is just a simple exercise for you to understand that communication में जो गैप रहती है उसको fill in जब हम हमारे दिमाग से करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ज्यादा होता है. So let's see that ये मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रैप जो होता है, जो अभी एक्सप्लेन किया है, बट जस्ट थोड़ा सा अगेन मे बी आदित्य विल एक्सप्लेन कि ये ट्रैप में हम कैसे फंस जाते हैं, एंड इसके बाद विल मूव ऑन टू कि हाउ वी कैन प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होते हैं, हम समझे कि क्यों होते हैं, ये ट्रैप में भी हम कैसे फंसते हैं हम ये समझेंगे, बट इससे कैसे निकलना है बाहर, हम इसके टूल्स देखेंगे इसके बाद. ओके okay? Okay, thank you so much, Rashi. It was interesting activity. So as we understand, आधी बातें तो राशि मैम ने ही क्लियर की है हमें. So सबसे पहले as we said, as we discussed, हमारा ब्रेन गैप्स फील कर लेता है हमारे परसेप्शन के हिसाब से. जब विस्कस आ जाते हैं तब मेरे दिमाग में जो आया, अभी मेरे पर्सनली विस्कस एनिमल के होते हैं, तो फिर बेसिकली मेरे मन में वो गैप भर गई, मैंने वो एनिमल की तरह प्रेजेंट करना चालू किया. तो मेरा ब्रेन मेरे एक्सपीरियंस, लर्नड एक्सपीरियंस से, बचपन से जो भी मुझे इंटरप्रिटेशन मिला है उसके हिसाब से उस ब्लैंक जगह को भर देता है. वो होने के बाद वी मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मीनिंग जो है वो अलग या फिर गलत निकाल सकते हैं. जो सिचुएशन हुई है उसके अलावा दूसरा मीनिंग निकल सकता है. फिर ऐसे टाइम में हम बहुत बार एज्यूम कर लेते हैं पुराने एक्सपीरियंसेस के बाद, और फिर उसके वजह से हम कुछ इंटरेक्शन करते हैं और वो इंटरेक्शन फिर से प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. एंड वो प्रॉब्लमेटिक होने के बाद ये एक्सपीरियंस हम लोग कैप्चर कर लेते हैं. अगेन वी ट्राई टू फिल द गैप कि देखो ऐसे बोला ना, फिर ऐसे ही होता है. देन वी चेंज द सिचुएशन. तो सिचुएशन चेंज होते रहेगी लेकिन ये साइकिल चलते रहेगी कि हम हमारे एक्सपीरियंसेस के जैसे गैप भरना चालू करेंगे, देन हम इंटरप्रेट हमारे हिसाब से करेंगे, फिर उसका मीनिंग ऐसा ही है. हमारे पास क्वेश्चन नहीं होता कि क्या ऐसा है. नो, वी आर श्योर दैट ये ऐसा ही है. और जब हम इतने एश्योरेंस से हमारे एजम्पशंस को पकड़ लेते हैं, देन ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट? फिर वो एजम्पशंस को हमें कैसे बदलना पड़ेगा, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस का क्या करना चाहिए, इसको एग्जैक्टली समझना कैसे, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे एग्जैक्ट पैटर्न्स क्या है. तो ये पैटर्न हम धीरे धीरे समझ सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि एक दो दिन की बात है. ये बहुत कई पुरानी चीजें रहती है जिसकी वजह से हमने ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हमारे पास गैदर करके रखा है, राइट? सो इसको, इस ट्रैप में अटकने के बाद
मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते ही जाएंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. सो So let's start with मूविंग our ऑन टू first नेक्स्ट. tool, how to prevent mis यू आर नॉट sorry. ऑडिबल. So let's understand with our first tool that how to prevent misunderstanding. जैसे हम अभी तक इतने बार सुन रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं. तो हम जब अज्यूम करते हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट क्या है ये चेक नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स जस्ट डू द सिंपल एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड फैक्ट वर्सेस अजम्पशन. ओके. तो सब लोग मुझे चैट में लिखेंगे, आपको क्या लगता है ये फैक्ट है या अजम्पशन है. शी वॉकड आउट ऑफ द रूम. वो रूम से बाहर चली गई. ओके. ये फैक्ट है या अजम्पशन है. फैक्ट. यस फैक्ट. राइट, ये फैक्ट है. वेरी गुड. सेकंड, शी वॉज एंग्री. यस. ओके, दो लोगों ने अजम्पशन बोला है. अजम्पशन. अजम्पशन. ओके. सो शी वॉज एंग्री इज एन अजम्पशन, बट सॉरी सॉरी, यू आर नॉट शी ऑडिबल वॉज अगेन. एंग्री, ये अजम्पशन है, ये हम बोल रहे हैं. राइट. वो कब फैक्ट में बदल सकता है. ओनली व्हेन वी क्लियर इट आउट, व्हेन वी आस्क. ओके. व्हेन वी आस्क, व्हेन वी क्लियर आउट, या तो सामने वाला बोल रहा है या आई एम एंग्री, या उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियरली बोल रही है, तभी वो फैक्ट में बदल सकता है. जस्ट मुझे लगा दैट शी वाज एंग्री कैन इज एन अजम्पशन. ओके. ही रेज्ड हिज वॉइस. फैक्ट. फैक्ट. यस. रेजिंग वॉइस उसने की है, ही रेज्ड हिज वॉइस इज अ फैक्ट. फोर्थ, ही डिसरिस्पेक्ट्स मी. assumption. assumption. yes. सो इट इज एन अजम्पशन, बट बहुत बार अभी हम रुक के हम चेक कर रहे हैं, बट हम देखेंगे कि हमारे लैंग्वेज में हम बहुत बार अजम्पशंस को फैक्ट समझ रहे हैं क्योंकि हम चेक नहीं करते हैं. राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. दिस इज आवर फर्स्ट टूल. आस्किंग आवरसेल्व्स व्हेनेवर वी हैव अ स्टोरी. हमारी दिमाग में हमेशा एक स्टोरी चलती रहती है अबाउट द सिचुएशन दैट हैज हैपेंड, या किसी ने कुछ बोला है या किसी के साथ कुछ हुआ है, एक स्टोरी हमारा सेल्फ टॉक चलता ही रहता है. बट वी नेवर पॉज एंड चेक ये सेल्फ टॉक में अजम्पशन कितना है एंड फैक्ट कितना है. So remember that next time, whenever you are having any kind of conflict or misunderstanding with someone, check that is it a fact that I'm telling myself or is it an assumption. Okay. So let's move on to our next tool, which is give benefit of doubt. जनरली हम डाउट तो बहुत करते हैं, एंड जब भी हम डाउट करते हैं हम वर्स्ट या नेगेटिव ही सोचते हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट. हम पॉजिटिव अजम्पशन करते हैं. अजम्पशन करना ही है ना, तो हम पॉजिटिव करते हैं. अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, जो जनरली करता है, मुझे लगता है कि हाँ वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं उसका रिप्लाई, बट उसने नहीं किया, तो रादर देन नेगेटिवली अज्यूमिंग कि उसने जानबूझ के नहीं किया, वो शायद गुस्सा है, या उसको ही इज इग्नोरिंग मी और शी इज डूइंग इट ऑन पर्पस, पॉजिटिव अज्यूम कर लो कि शायद वो बिजी है, शायद वो उसने मोबाइल नहीं देखा बहुत टाइम में, शायद शी स्ट्रेस्ड इसीलिए अभी रिप्लाई नहीं कर रही है. हम पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं. इससे क्या होगा, वो जो गैप है वो जब फिल इन नहीं होता है रियलिटी से, तब तक एटलीस्ट हम डिस्ट्रेस में नहीं रहेंगे. सो नेक्स्ट टाइम पॉजिटिवली अज्यूम एंड आस्क व्हाट एल्स कुड बी ट्रू. मैं सिर्फ एक ही सोच रहा हूँ कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है. लेट मी सी व्हाट एल्स कुड बी ट्रू. लेट मी पॉजिटिवली अज्यूम कि शायद वो जेन्युइनली बिजी, या जेन्युइनली वो कर नहीं रही है क्योंकि वो कुछ काम में अटकी है या स्ट्रेस्ड है अभी कुछ और चीज के वजह से.
So let's start assuming positively by giving a benefit of doubt. Third is use I statement instead of blame. This is personally I love this tool, and ये जनरली मैं पेरेंट एंड चाइल्ड को भी बहुत जब भी मैं पेरेंटिंग का वर्कशॉप लेती हूँ मैं ये देती हूँ टूल, because if you see that most of the interactions turn into a conflict or an argument when we use or start our conversation with blame. That is, when you have the thing that, you did this, or, it's your mistake, you are at fault, or, you don't care, you always ignore me. When we start the sentence with you are attacking the person, you are shaming the person. This will only lead to defensiveness. सामने वाला कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं हो रहा है, आप उसको शट डाउन कर रहे हो और आप उसको रिएक्टिव बना रहे हो, बिकॉज यू आर सेइंग यू राइट. अब आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज. मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगी, आप देखो आपको कैसे फील हो रहा है और किस में आप ज्यादा ओपन फील कर रहे हो. ठीक है, सो क्लोज योर आईज. ओके. And for example, the first sentence is, you never listen to me. You always do this. ये आपको कैसे फील करा रहा है और आपको क्या मन कर रहा है, रिएक्ट करने का या रिस्पॉन्ड करने का, ये ऑब्जर्व करो. ठीक है. एंड सेकंड में आई एम यूजिंग अ आई स्टेटमेंट विच इज बेसिकली मुझे क्या बुरा लग रहा है कि आई एम फीलिंग अनहर्ड, बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई फील अनहर्ड व्हेन आई एम इंटरप्रिटेड, सो नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. सो जब मैं आई सी सेंटेंस यूज कर रही हूँ, आपको कैसा फील हो रहा है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहोगे या आप रिएक्ट कर रहे हो. सो यू कैन ओपन योर आईज एंड टेल मी कि जब मैंने यू से स्टार्ट किया सेंटेंस दैट यू डोंट लिसन टू मी, यू ऑलवेज डू दिस, एंड जब मैंने आई से बोला दैट आई फील अनहर्ड व्हेन यू इंटरप्ट मी ऑलवेज, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, which was better way to listen and to communicate, you or I. Okay, I is better. I I. statement. Yes. So remember that you will only attack the other person, and when you start attacking, the other person will not sit quietly. The other person will also attack you, and then it starts to build into a argument and a conflict. I builds connection. I makes the other person be more open to communication. Similarly, और एक just example दे रही हूँ, you never appreciate anything I do. ठीक है, ये बोल दिया तो सामने वाला डिफेंसिव होके रीजंस देगा कि नहीं मैंने तो किया था, नहीं मैंने तो मैं करती हूँ या मैं करता हूँ. यू बिकम डिफेंसिव एंड यू स्टार्ट जस्टिफाइंग, राइट. बट मेरा नीड है अप्रिसिएशन का. सो सिंपली सेइंग दैट आई फील अनसीन when my efforts go unnoticed. I need acknowledgement when I contribute. Very simple. You're expressing your need, right? सो जब आप आई से करते हो कनेक्शन बिल्ड होता है. ओके, सो रिमेंबर दिस बिकॉज आई फील दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल इफ यू वांट द communication to go healthy rather than it escalating into an argument or a conflict. Okay, so let's move on to our next tool. Any questions so far? कोई questions है अभी तक? Okay. Okay, so share your needs clearly. ये जनरली मैं बोलूंगी कि रिलेशनशिप्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम ये बिलीफ के साथ चलते हैं दैट बिकॉज ही इज माई पार्टनर और शी इज माई पार्टनर एंड बिकॉज दे लव मी तो उनको मेरे बारे में सब समझना ही चाहिए. I assume and I believe that the other person should read my mind and should be able to guess what my needs are. And यहाँ से ही होती है बिग गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, माई नीड, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सामने वाला समझे, और जब वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, बिकॉज फैक्चुअली नो वन कैन रीड योर माइंड. व्हेन यू स्टे विद समवन over the period of time you understand the other person's habits, their needs, because of the experiences. But when you assume साथ में रहने के बाद just because you love me you should know about me or you should know what I need right now, will only create problems. So it's better to share.
सो ये निकालना है दिमाग से दैट people can read me. Even the people who love you cannot read your mind. You need to express yourself. You need to express your needs. So if you need reassurance, say it. Don't assume या don't expect कि वो आके मुझे reassure करेंगे. Express it. You will save the time to go into an argument and a conflict and the person to understand कि अच्छा आपको reassurance चाहिए था इसलिए आपको गुस्सा आया है. Right? Second, so if you need space, say it. अगर आपको space चाहिए अभी कि अभी ठीक है आप disturbed हो, say it that right now I need this. Okay? And if you want clarity, ask for it. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कुछ नहीं समझ रहा है आस्क फॉर इट रादर देन अगेन अज्यूमिंग या assumptions पे ही अपने फैक्ट को बेस करना एंड समझना कि यही है कंफ्यूजन क्लियर करो आस्क फॉर इट ओके सो दिस इज another tool which you can use whenever there is misunderstandings happening okay so here we come on to the end of our webinar wherein we have shared the tools and an understanding about why misunderstandings happen. Okay. So, for the next 2 to 3 minutes, the floor is open. If you want to ask any questions on this topic, you can. So, I'll just keep the floor open. So, for you to ask questions if there are any on this topic. Okay. So, I think there are no questions. Okay. So I hope this misunderstanding topic is clear to you, and I hope in your relationships, at your workplace, with your children, you do now take a pause next time and think how you want to communicate and clear your doubts and express yourself rather than assuming things. Okay. So I think I'll just say that we keep on having these webinars, okay, every month. Last time we had mind body reset workshop. This time we are having a webinar on misunderstanding. Next time we'll have another topic coming up. So if you are interested and if you want, you can join a group which a link will be sent to you. So you can please join the group so that you get the updates about different workshops and webinars that we'll be having in the following months. Okay. So, yeah, so I hope you enjoyed the session. And if you want, you can just write in the chat box if there's any suggestion or if there's anything that you would like to share. Any suggestion for a future webinars or any topics that you would like to suggest, if there's any. Thank you, Isha. Okay, so no problem. Anyway, you'll be getting a link, so you can, write there your feedback and any suggestion that you have for future topics that we'll be having. So thank you so much. Thank you so much for joining and taking out your time for this. Thank you so much. Bye.